अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक और मैंने केस प्रिपेयर किया है। ये मैंने अपने हॉस्पिटल में देखा था और इसको फिर मैंने बना लिया डॉक्टर ज़ेबा ऑन कॉल, केस नंबर 15। और इसमें एक पेशेंट मेरे पास आया था। उसकी हिस्ट्री मैं बताती हूँ आपको। अ 40-year-old मैन प्रेजेंटेड विद 3 months history of a swelling on his left side of the neck, followed by a similar swelling on the right side of his neck. He complained of anorexia and weight loss since the appearance of the swelling. History of high-grade fever off and on since 1 month. There was no history of hypertension, diabetes or asthma. On examination, he was anemic. Cachexia was present with temporal emaciation indicating significant weight loss. Cervical lymph nodes were enlarged. One on the left side, 3 by 3 centimeter anteriorly, non-tender and overlying skin was normal. On the right, 2 by 2 centimeter lymph node was present in the posterior cervical region, non-tender with overlying skin normal. Abdomen was sunken, no tenderness of visceromegaly. Cardiovascular system, cardiovascular and neurological examinations were unremarkable. Axillary and inguinal lymph nodes were not enlarged. Neither submandibular, submental, auricular, occipital. ठीक है। तो एक ये पेशेंट आया था, 40 ईयर्स का था बेचारा, इतना एनीमिक, कैक्सिया उसको हुआ हुआ, वेट लॉस सिग्निफिकेंट, और उसके जो है ना नेक में एक एंटीरियरली और एक पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन में ना बड़ी बड़ी सी लिम्फ नोड्स थी। ठीक है। और उसकी हिस्ट्री ये थी कि 3 महीने में उसको ये 2 लिम्फ नोड्स हो गई हैं इतनी बड़ी, और उसको भूख नहीं लगती और बुखार होता है ऑफ एंड ऑन। 3 मंथ से उसके साथ ही अच्छा, तो वेट लॉस हो गया था उसको बहुत। बाकी उसकी ना कोई और लिम्फ नोड मुझे एनलार्ज नहीं मिली थी। इन्वेस्टिगेशंस जब कराएं तो इट रिवील्ड हीमोग्लोबिन 7.2 ग्राम, सोचें आप, पर डेसीलीटर। MCV was 73 femtoliters, TLC वो 8,200, platelets were 2,50,000, ESR was 90 millimeter in the first hour. Blue ribbon 0.9 milligram per deciliter, SGPT 26, gamma GT 30, alkaline phosphatase 99, urea 40 milligram per deciliter, creatinine 0.9 milligram per deciliter, LDH was 280 units per liter. Hepatitis B surface antigen and hepatitis C antibody were negative. Cervical lymph node biopsy अब देखें। Cervical lymph node biopsy जब कराई तो it revealed lymphoid tissue affecting nodal architecture by diffuse infiltrate of large cells exhibiting angulated nuclei with prominent nucleoli with moderate amount of cytoplasm. Interspersed numerous mitotic figures were seen. Immunohistochemistry showed following pattern. CD20 was positive, CD3 was negative, BCL2 positive, CD10 was negative, BCL6 positive, CD5 negative, CD23 negative. तो CD20 और CD जो है ये बी लिम्फोसाइट को इंडिकेट कर रहा है ना, और जो 3 और 5 हैं वो सब नेगेटिव हैं, यानी कि T वाले। ठीक है। तो ये इसकी डायग्नोसिस हो गई हाई ग्रेड डिफ्यूज बी सेल नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं थे। अब ना इसका पैट स्कैन हुआ, फिर पैट CT स्कैन फाइंडिंग्स। उसने हेड एंड नेक में डिफ्यूज थिकनिंग द नेजोफेरिंग्स विद इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्ड अपटेक ऑफ, ये भूल गई भी किसका है, एसिमेट्रिकली हाइपर मेटाबॉलिक एंड लार्ज लिम्फ नोड्स, यानी कि जो हाइपर मेटाबॉलिक होते हैं उसमें ये फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज से पेट स्कैन किया जाता है, तो उसमें ये जो है ना इसकी अपटेक हो जाती है। ठीक है। तो वो वो इंडिकेट करते हैं कि ये उसमें मेटाबॉलिक उसकी स्टेट जो है वो इंक्रीज हुई है। तो एनलार्ज हाइपर मेटाबॉलिक लिम्फ नोड सीन इन बायलैटरल सर्वाइकल रीजन मेकिंग कॉन्फ्लुएंट मासेस। राइट साइडेड सर्वाइकल नोडल मास measure 6.1 to 3.1 centimeter with a standard uptake. Left
cervical lymph node measures 7.7 into 3.1 centimeter. Multiple and large hypermetabolic supraclavicular lymph nodes masses bilaterally. Chest may be multiple and large hypermetabolic lymph nodes in the mediastinum and the hilar regions. Abdomen में spleen normal size की है 9.7, homogeneous uptake in the liver and liver parenchyma, यानी कि liver spleens के enlarged नहीं थे. Multiple hypermetabolic lymph nodes seen splenic hilum, epigastrium, retroperitoneum, involving para-aortic, pre-aortic and aortocaval region. Bilateral common iliac, external iliac, internal iliac lymph nodes were noted. Bilateral hypermetabolic inguinal lymph nodes noted. No hypermetabolic osteolytic or osteosclerotic lesion. PET scan shows enlarged lymph nodes on both sides of the diaphragm. No hepatic, splenic or marrow deposit. तो स्टेज 3 डिजीज़ फिर हो गए. अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे स्टेजिंग करते हैं. अब ये स्टेजिंग लिम्फोमा की जो है ना वो इस तरह से होती है कि पहले फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपने देख लिया कि बी सिम्टम्स हैं क्या. बी सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी एनोरेक्सिया है और फीवर है और वेट लॉस है, तो इसको बी सिम्टम्स में हो रहे हैं. ठीक है. फिर लेबॉर्ट्री एवालुएशन में आपने कंप्लीट ब्लड काउंट्स करवानी है, लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड, कैल्शियम, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन. ये जो है इसके प्रोग्नोस्टिक रिस्क फैक्टर्स हैं. ठीक है. चेस्ट रेडियोग्राफ, सीटी स्कैन एब्डोमेन, पेल्विस एंड यूजुअली चेस्ट. बोन मैरो बायोप्सी, लंबर पे अगर बोन मैरो इन्वॉल्व है तो. लंबर पंक्चर इन लिम्फोप्लास्टिक बर्केट्स एंड डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा with positive marrow biopsy, gallium scan, SPECT और PET scan large cell lymphoma. ठीक है. तो ये हमने इसका PET स्कैन करवा लिया था. तो ये पूरी बॉडी में जो है ना फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज की अपटेक हो जाती है जहाँ जहाँ पे हाइपर मेटाबॉलिक लिम्फ नोड्स हों. ठीक है. तो ये पता चल जाता है. अब आप स्टेज कैसे करेंगे उसको. स्टेज में स्टेज 1 जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल लिम्फ नोड रीजन और सिंगल एक्स्ट्रा नोडल साइड. उसको आई कहेंगे. एक्स्ट्रा नोडल साइड है तो आई, सो 1 और 1E कहेंगे. ठीक है. तो इसमें तो एक्स्ट्रा नोडल साइड नहीं है, सारे के सारे लिम्फ नोड्स ही बड़े हुए थे. 2 क्या होगा, अगर सिर्फ एक लिम्फ नोड्स में हो तो वो स्टेज 1 है. इन्वॉल्वमेंट of 2 or more lymph nodes region or lymphatic structure on the same side of the diaphragm alone, उसको 2 कहेंगे. और with involvement of limited contiguous extra lymphatic organ और tissue 2E हो जाएगा. फिर वो 3 क्या होगा, involvement of lymph nodes region on both sides of the diaphragm 3 which may include spleen 3S बोलेंगे उसको, और limited contiguous extra lymphatic organ और tissue 3E और बोथ 3E और S. ठीक है. 4 क्या होगा, डिफ्यूज और डिसिमिनेटेड फोकाई ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 और मोर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स और टिश्यू विद और विदाउट एसोसिएटेड लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट. ठीक है. तो इस हिसाब से इसको स्टेज 3 डिजीज़ हुई. दोनों मतलब चेस्ट में भी हैं, एब्डोमेन में भी हैं, सर्वाइकल रीजन में भी हैं और एक्स्ट्रा लिम्फेटिक टिश्यू में नहीं है इसके. ठीक है. लिवर स्प्लीन्स का सही था. अब ना इंटरनेशनल प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स होती है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की. तो 5 क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें. एज जो है वो मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स. सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लेवल इसमें भी हमने करवाया था 280 था तो बढ़ा हुआ था. परफॉर्मेंस स्टेटस मोर देन 2 एंड आर्बर स्टेज 3 और 4. तो मोर देन 1 साइट ऑफ एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट. अब फॉर डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के लिए अगर 0 to 1 फैक्टर है तो लो रिस्क होगा. ठीक है. उसमें 35% ऑफ केसेस 5 ईयर सर्वाइवल 73%. 2 फैक्टर्स अगर हैं तो लो टू इंटरमीडिएट रिस्क 27% ऑफ द केसेस 5 ईयर सर्वाइवल 51%. 3 फैक्टर्स अगर हैं तो हाई और इंटरमीडिएट रिस्क, हाई टू इंटरमीडिएट रिस्क 22% of the cases 5 year survival 43%. 4 to 5 अगर हैं फैक्टर्स तो हाई रिस्क होगा ये और 16% ऑफ द केसेस
5-year survival is only 26%. For diffuse large B cell lymphoma treated with R-CHOP, R-CHOP यानी कि क्योंकि CD20 पॉजिटिव होते हैं तो रिटुक्सीमैब CD20 एंटी CD20 है वो, ठीक है। तो रिटुक्सीमैब और साइक्लोफॉस्फेमाइड, डॉक्सोरिबोसिन, वेनक्रिस्टीन और प्रेडनिसोलोन, अगर इसके साथ ट्रीट हो गया और फिर ज़ीरो फैक्टर है तो गुड। 10% केसेस 4 ईयर सर्वाइवल होता है, 94%। 1 to 2 फैक्टर्स अगर हैं तो इंटरमीडिएट 45% ऑफ द केसेस सर्वाइव फॉर 4 ईयर्स, 80%। एंड 3, 4, 5 फैक्टर्स आर पुअर, 45% ऑफ द केसेस का 4 ईयर सर्वाइवल, 53%, ठीक है। और ये जो ECOG है ना, ईस्टर्न कोऑपरेटिव ऑन्कोलॉजी ग्रुप, वो जो ऊपर मैंने बताया था आपका वो है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की आपको जो है वो स्टेजिंग और रिस्क फैक्टर्स, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स वो बता दूं, तो आज हमने ये कर लिया, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर जो है ना कमेंट कीजिएगा अपना। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।